Good afternoon. Before we begin, let me introduce all of us who are here. On my right, Dipinder Huda. On his right, of the Indian National Congress. On his right, Manoj Jha of the RJD. Left, the parliamentary leader in Rajya Sabha, Professor Ram Gopal Yadav. Mr. Sanjay Raut, the parliamentary party leader of the Shiv Sena UBT. And Mr. Jairam Ramesh, the chief whip of the Congress in the Rajya Sabha. Today, before we begin, today is an important day in Tamil Nadu. It's the 102nd birth anniversary of the late Mr. Karunanidhi. So no DMK MP obviously would travel on a day like this before you all start some other speculation. Okay? The press conference today will be addressed by 5 of us. I will start. Then we will have Dipinder Huda of the Congress, then Professor Ram Gopal Yadav, then Mr. Sanjay Raut, in 4 of them I think will speak in Hindi, and Mr. Manoj Jha. Right. So here we go. It's a very short press conference of less than 10-12 minutes. Number 1, 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri, and having a free and frank discussion in Parliament. I'm going to give you the names of these parties. Before we give you the names of the parties, why this letter? The government is responsible to Parliament. Parliament is responsible to the people. So it's but natural for all these parties, since the government is answerable to Parliament, that's why this session, because Parliament is responsible to the people. Who are these parties? The Indian National Congress, the Samajwadi Party, AITC, also known as Trinamool, the DMK, the Shiv Sena UBT, the RJD, the JNK NC, National Conference, the CPIM, the IUML, the CPI, the RSP, the JMM, the VCK, the Kerala Congress, the MDMK, the CPIML Liberation. If you add that up, it's 16, and our understanding is that one more party is writing directly tomorrow to the Prime Minister, and that is the Aam Aadmi Party. Now, so that's the letter. The first signature on that letter is by the leader of the opposition in the Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi. The second signature on the letter is, as per the number of MPs in Lok Sabha, Mr. Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party. Professor is also here. The third signature on that letter is from the All India Trinamool Congress, the National General Secretary, Mr. Abhishek Banerjee. The fourth is Mr. Balu of the DMK. Then we have Arvind Sawant of the UBT, Abhay Kumar Sinha of the RJD, Mia Altaf Ahmed of the JNKNC, Mr. K. Radhakrishnan of the CPIM, Mr. Bashir of the IUML, K. Subramanian of the CPI, Mr. Premachandran of the RSP, Joba Maji and Vijay of the JMM, Vijay Hansak, Dr. Tholkapian of the VCK, Advocate Francis George of the Kerala Congress, Durai Vaiko of the MDMK, and Raja Ram Singh of the CPIML, along with 2 more from the Congress, that is Mr. K.C. Venugopal and Ms. Priyanka Gandhi Vadra. That's the total list of the signatures. So 16 of these have signed, and I conclude by saying that the rest of the MPs will also be signing. Lok Sabha,
and Rajya Sabha. This is the Lok Sabha and Rajya Sabha in the next couple of days, 2 days, 3 days. But this is done. That process, given the technology available, we will get this done. We're looking at getting it done this week as soon as possible. We want this special session. Over to Dipinder Huda. जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी सांसद तृणमूल कांग्रेस से डेरेक भाई ने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है, संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पे भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा समाजवादी पार्टी से आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी से कि वो आएं और अपना पक्ष रखें। जो डेरेक साहब ने और हुडा जी ने यहाँ कहा, उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी
सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीज़ें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उस बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। इस पर चर्चा होना आवश्यक है और पार्लियामेंट का सेशन बुलाना बहुत आवश्यक है। संजय, जैसे कि हमारे साथी डेरेक जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बात की है, और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज़ है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज़ और हमारी बात कहते रहेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री जब संकट में थे या देश संकट में था, तो आपको हम सभी की ज़रूरत पड़ी थी कि देश एक है, हम सब एक हैं, तो हमने आपको समर्थन दिया। हमने नहीं कहा कि आप फलाना फलाना 10 साल में किया है और अभी आगे जाकर भी यही करेंगे। हमने कहा देश संकट में हमको आपके साथ रहना है। लेकिन अगर आप संसद सत्र बुलाने में राजनीति करते हो, तो ये देश के प्रतिष्ठा के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जो लेटर है हमारी तरफ से, ये बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद। संजय, come here. शुक्रिया, थैंक यू टू यू ऑल। हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात रख दी है। मैं 2-3 चीज़ें कह करके बात खत्म करूंगा। पत्र के बारे में लोग बोल चुके हैं। देयर इज नथिंग मोर टू इलैबोरेट फर्दर। पहलगाम वॉज नॉट इंडिविजुअल पेन्स ऑफ द फैमिलीज हु लॉस्ट द नियर एंड डियर वंस। ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था, वी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? Parliament. Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why, ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है,
हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है अकाउंटेबिलिटी का। एज डेरेक जी सेड, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। लोग कहां सोशल मीडिया पर विश्वमन करके अपनी कैथारसिस करते रहेंगे। मैं समझता हूं इस पर विराम लगना चाहिए। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू सो मच, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स। Just one point before the questions, which is very important, because you're seeing only MPs here. ये बहुत important point है. This is not a decision of the parliamentary parties of these parties. This is by the heads of these parties. For example, obviously the leader of the opposition, the Congress president, Mr. Kharge, the All India Trinamool Congress chairperson, Ms. Mamata Banerjee, the head of the Samajwadi Party, Mr. Akhilesh Yadav, the head of the DMK, Mr. M.K. Stalin, the head of the Shiv Sena UBT, Mr. Uddhav Thackeray, the head of the RJD, Mr. Tejasvi Yadav. These decisions are not made at only parliamentary level. This is made at the top levels of the party, right? Okay? Thank you so much. Listen. We are not Mr. Modi. We take questions also. Yeah. What is your question? I'll take it. Yes. Fair question. It's a fair question about Aam Aadmi Party. Our understanding is that by tomorrow 6 p.m., Aam Aadmi Party on the same issue, the same sentiment and the similar content would have written to the Prime Minister of India seeking a special session. This is my understanding. But why we are not doing this? Sharan Pawar की पार्टी भी नहीं आई है, संजय राउत जी Yeah, 17 came. Now you're... क्या है? जी की पार्टी, एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी। देखिए शरद पवार साहब भी हमारे साथ ही है। ये जो सिग्नेचर के ऊपर लीडर ऑफ द फ्लोर का सिग्नेचर है और सुप्रिया सुले जी डेलीगेशन में बाहर है। जब अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी पवार साहब से बातचीत होगी।